सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है। If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves his word. Hallelujah. Let's go to Isaiah 51 verses 16. यशाया 51 उसका 16 देखते हैं। And God says, I have put my words in your mouth. और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया है। Whose words are they? किसके वचन हैं ये? Come on, talk to me. Whose मुझसे words बात are करो, they? किसके शब्द हैं ये? God's. परमेश्वर के। But where does he want to put his word? वो अपने वचन को कहाँ डालना चाहता है? In your mouth. आपके मुंह के अंदर। Because as long as the word is inside the leather book, they are of no use. क्योंकि जब तक वो वचन लेदर की किताब के अंदर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। If the word of God has to be activated, it has to go in your mouth. अगर परमेश्वर के वचन का काम करना शुरू करना जरूरी है तो उसको आपके मुंह में जाना पड़ेगा। Amen. And I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand. और मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में रखे हैं और अपने हाथों की छाया में तुझे छिपा कर रखा है। The hand of God is a prophetic picture of the might or the power of God. परमेश्वर का हाथ एक तस्वीर है परमेश्वर के पराक्रम या उसकी सामर्थ्य की। And here it means the Holy Spirit. और यहाँ पर इसका मतलब है पवित्र आत्मा। The angel told Mary that the power of Most High God shall overshadow you. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छा जाएगा। I'm telling you, these are the only two things that you need. यही दो चीजें हैं जो आपको चाहिए। Not 10 things, not 15 things. 10 चीजें 15 चीजें नहीं चाहिए, दो चीजें चाहिए बस। Two things. दो चीजें। If you can just become conscious of these two things, you will walk as a champion in the kingdom. अगर आप इन दो बातों के लिए सचेत हो गए तो एक महारथी की तरह जियोगे राज्य में। Amen. The first is His word in my mouth. पहला है उसका वचन मेरे मुंह में। Say this after me. God's word in my mouth releases God's power. मेरे साथ बोले, परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है। Amen. God's word. Say it again. God's word दोबारा कहें, in my mouth releases God's power. परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है। And God has already released His power. और परमेश्वर ने पहले ही अपने सामर्थ्य को भेज दिया है। Your tongue is the switch that turns it on or turns it off. आपकी जुबान वो स्विच है जो उसको ऑन या ऑफ कर सकती है। When you go home and there is no electricity, it's dark. What do you do? जब आप घर जाते हो और अंधेरा है, रोशनी नहीं है घर में, तो क्या करते हो? You flip the switch. Do you call the electric company? स्विच ऑन करते हो ना। आप बिजली वालों को कॉल तो नहीं करते उस टाइम? Oh, Delhi Nagar Nigam. There is darkness in my house. अरे अंधकार है मेरे घर में। So they'll check. वो चेक करते हैं। Where do you live? कहाँ रहते हैं आप? South Delhi. Okay. साउथ दिल्ली में। अच्छा। Oh, from our side, the line is on. जी लाइन तो ऑन है हमारी तरफ से। There are so many Christians बहुत से मसीह हैं who are crying out to God. जो परमेश्वर को रो रो के God, गुहार do लगा it रहे for हैं। me. प्रभु करो मेरे लिए। God says, I have already done it. प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूँ पहले ही। Put my word in your mouth and release my power. मेरे वचन को अपने मुंह में डालकर मेरी ताकत को खोल दे।
So if you want light, अगर आपको प्रकाश if चाहिए, you want health, स्वास्थ्य if चाहिए, you want prosperity, समृद्धि if चाहिए, you want peace, शांति चाहिए, if you want joy, आनंद चाहिए, you don't have to cry out to God. आपको परमेश्वर को रो रो के बुलाने की जरूरत नहीं है. You have to learn to turn it on. आपको उसको ऑन करना सीखना है. And where is the switch? और वो स्विच कहाँ है? Your tongue. आपकी जुबान. You can turn on blessings in your life through your tongue. आप अपने जीवन में आशीषों को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा. You can turn on a long life in your life through your tongue. आप एक लंबी आयु को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा अपने जीवन के लिए. You can live a blessed life on this earth through your tongue. आप एक आशीषित धन्य जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हो अपनी जीभ की वजह से. Amen. So why have God done it? Why has God put His words in our mouth and covered us with the shadow of His hand? तो क्यों परमेश्वर ने अपने शब्दों को हमारी जीभ हमारे मुंह में डाल दिया और अपने हाथों की छाया में हमें ढांप दिया? He says that I कहता है, may plant the heavens. वो कहता है ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी पर बो दूं, लगा दूं. God created heavens through His word. परमेश्वर ने स्वर्गों को अपने वचन के द्वारा बनाया. God created earth through His word. परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा बनाया. And God is saying, if I can put my words in your mouth, and if you live under the Spirit of God, you are filled with the Spirit, and then you speak my word, you can plant heavens on this earth. और परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आत्मा के अधीन रहो, मेरा वचन तुम्हारे मुंह में हो तो तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर बो सकते हो, लगा सकते हो. Do you get it? समझ में आ रहा है? The will of God for you is प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है that your life will look like heaven on this earth. कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर जीते हुए स्वर्ग जैसी नजर आए. Your marriage will look like heaven on this earth. आपकी शादी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी नजर आए. Your children आपके बच्चे will be flourishing. वो सफल हो रहे हो, बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो. God wants to plant heaven in your life. परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग को बोना But you चाहता have है. to partner with God. पर आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना होगा. You have to partner with God. परमेश्वर के साथ मिलकर आपको काम करना होगा. So उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती His word is the master key that can open every closed door from your life. है. So अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है. If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves His word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में. In your heart and in your mouth. So परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए. आप जानते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया क्या है? Zion. You know what God calls the church? He calls the church Zion. Hebrews 12 अगर आप 22 और 23 देखेंगे Hebrews 12. तो इसमें लिखा है, but you have come to Mount Zion. आप लोग सियोन पर्वत पर आए हो. Not that you will come, you have come. यानी कि आप आओगे, आए हो. The New Testament church, God sees it as Mount Zion. नई वाचा की कलीसिया को परमेश्वर सियोन पर्वत कहते हैं. City of living God. जीवित परमेश्वर का शहर. Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम. To an innumerable company of angels. जहां लाखों स्वर्गदूत हैं, वहां पर आए हो. If God opens your eyes, you will be amazed that how many angels are in this place. अगर परमेश्वर आपकी आत्मीय आंखें खोल दे, आप हैरान होंगे कितने स्वर्गदूत हैं यहाँ पे. एक एक तो आपके साथ ही आए. One each came with you at least. अगर आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो तो एक तो आपका पर्सनल स्वर्गदूत है. If you are a born again believer, you have at least one personal angel with you. So 2500 लोग जो यहाँ पे हैं, 2500 स्वर्गदूत तो आप ही के साथ आए. Yeah, 2500 angels came just with you guys. उसके बाद और बहुत सारे आते हैं जब मीटिंग होती है. And many others come when there are meetings.
और कुछ है जिनके साथ एक नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। And there are some believers who don't have one but many angels. कुछ एलाइशा जैसे भी हैं जो अपने साथ एक आर्मी लेके चलते हैं एंजल्स Some are like Elisha who walk with an army of angels. आमीन। हमें शारीरिक सोच से बाहर आना है और आत्मिक व्यक्ति की तरह सोचना We है। have to come out of earthly thinking and think like a spiritual man. जितना मैं करोगे उतना दुख में रहोगे। Yeah, as much as you consider yourself, you'll stay in a जिस दिन miserable ये सोच condition. लोगे परमेश्वर मुझे किसी और के लिए आशीष बना दे, उस दिन देखो कैसा आनंद आपके जीवन से बहने लग जाए। The day you determine to be a blessing for someone else, see the kind of joy you will start enjoying in your मैं life. आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I'm telling you a secret today. आपका पेट हमेशा खराब रहता है, Is your stomach always किसी की upset? बीमारी है, Is there any sickness? बोलो प्रभु मैं दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। Say, Lord, I will pray for those who are sick. ये मत बोलो जब प्रभु पहले मेरे लिए करेगा, प्रभु ने मुझे तो करा नहीं, मेरे लिए तो करा नहीं। Oh, the Lord hasn't healed me first. He has to प्रभु heal ने me first. अब्राहम को बोला God told Abraham, राजा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना कर क्योंकि उसका बच्चा नहीं है। जब सारा बांझ थी, अब्राहम की बीवी बांझ थी, परमेश्वर ने कहा जा दूसरी बांझ के लिए प्रार्थना कर। और जब अब्राहम ने प्रार्थना करी तो अबीमेलेक का बच्चा हो गया। कई बारी ये आपके जीवन में टेस्ट है। God told Abraham to go and pray for Abimelech's wife who was barren. Abraham went and prayed and she conceived. This is a test for many people. Come on. Come on. अब्राहम ने नहीं कहा अरे प्रभु Abraham मैं didn't prayer complain. करूं। He said, Lord, I should. मेरी बीवी का भी तो नहीं है Oh, बच्चा। even my wife doesn't have a child. उसने नहीं कहा, He didn't say that. उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। He obeyed what the Lord said. आप खुद करके देखो। You tried yourself. जब कलीसिया में आता ये मत सोचो When you come to the church, don't think like this. मैंने पूछिया ही नहीं किसी। Oh, nobody considered me. Nobody looked at me. अरे तो तुम पूछ लो किसी और को। Then you go and ask someone else, how are they doing? बोलो यीशु मुझे आशीष का एक श्रोता बना। Say, Jesus, make me a channel of blessings. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग मैं में जीते हैं, ये वचन तो बिल्कुल भी नहीं था जो मैंने बनाया था, पर This was not the word that I had for you. But आत्मा कलीसिया से आज भी कह रहा है। Spirit is still speaking to the churches. सो जो लोग मैं में जीते हैं The people who live in this self-centeredness, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, अपने अंदर कड़वाहट ले आते हैं। और जब कड़वापन अपने अंदर आ जाता है तो परमेश्वर का अनुग्रह चोक हो जाता है। they get offended quickly and they become bitter inside. And when they become bitter inside, the grace of God gets choked from their life. Come on. आमीन। मगर जिस दिन आपने सोच लिया The day you determine this, कि परमेश्वर मैं किसी और के लिए आशीष बनना चाहता Lord, I want to be a blessing for someone else. हूँ, उस दिन आप देखो क्या होगा आपके जीवन में। See what will happen in your life. परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और जाति जातियों के लिए तुझे आशीष बनाऊंगा। God told Abraham, I will bless you and I'll make you a blessing for nations. और वही बुलाहट आज हमारी भी है। And that same calling is परमेश्वर ours. आपको जाति जातियों के लिए आशीष बनाना चाहता है। God wants to make you a blessing for nations. कई बार लोग क्यों कह रहे प्रभु क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, Sometimes क्यों people are नहीं saying, Lord, why aren't you giving to me? पहले परमेश्वर आपका पैसे का प्रेम तोड़ना चाहता है। First, the Lord wants to break your love for money. प्रभु नहीं चाहता कि हम एफडी बन जाएं जहां परमेश्वर डाले और 5 साल के लिए निकाल ना सके कुछ। The Lord doesn't want us to become FDs where He puts money and He cannot withdraw anything for the next 5 years. हमें आत्मिक एफडियां नहीं बनना है। We don't have to become spiritual FDs. यीशु ने कहा फ्रीली तुम्हें मिला है फ्रीली दो। Jesus said, freely you have received, freely give. और इस बात को जान गए, इस सिद्धांत को जान गए हैं, जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा उसको कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। And because I know this principle, he who will stretch forth his hand to give will never have to stretch his hands for asking. हमें लगता है देखो हम कितने बुद्धिमान हैं। We think we are so wise. जैसे बिल आने वाला मेरा फोन आ, Oh, I'm just getting a call. कितनी बार भागोगे जब बिल आएगा। How many times will you run away when it's time to pay the bill?
कितनी बार ऐसे इंसानी बुद्धिमानी दिखाओगे? How many times will you show this परमेश्वर की human wisdom? विजडम पालो। वो कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के। परमेश्वर ऐसा उंडेलेगा उसके जीवन में कि उसको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। The wisdom of God says, he who gives, it will be poured into his bosom. Shakingly, people will come and press down upon him and bless him, and he will lack nothing in his life. आमेन। ये कुछ मर्द नहीं समझेंगे इसको यहाँ पे, पर बहनें समझेंगी। जब आटा उंडेला जाता है, जब आटा उंडेला जाता है उस कनस्तर में, थोड़ी सी जगह और। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। थोड़ी जगह और है। This is how God is going to bless you. There's still some थोड़ी space जगह left. और है आशीष की। Still some space left. He will shake और and हिलाओ fill इसे, you. और Pour- डालो आशीष। pour down more जब तक ये blessing. उमड़ने ना लग जाए, Until he starts to आशीष overflow. डालते रहो इसके Keep जीवन pouring में, blessing. क्योंकि इसका हाथ खुला है औरों के Because लिए। his hand is open क्योंकि for ये others. मतलबी जीवन नहीं जीता, ये Because he औरों के लिए एक doesn't live a आशीष बनना selfish चाहता है। life. He wants to be a मैं blessing for इसको others. एक श्रोता I बनाऊंगा। will make him a fountain. मैं इसके जीवन के द्वारा कई और जातियों को आशीष दूंगा। I will bless many other nations through him. आमेन, हालेलुया। ये आपकी स्टोरी होगी यीशु के This नाम will में। be your story in Jesus' name. ये आपकी स्टोरी होगी। This will be your story. आमेन। कई लोग छोटे में विश्वास योग्य नहीं होते। यीशु ने कहा जो छोटे में विश्वास योग्य है, Many people are not faithful with the little they are given. Jesus said, he who is faithful in the little. जब तक हम केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, Until we keep अपना thinking सोचेंगे, about ourselves. प्रार्थना केवल अपने ले, Only pray for ourselves. हर एक चीज अपने ले। Everything for ourselves. जिस दिन आप दूसरों के लिए सोचने लगे, The day you start thinking for others. बहुत पहले परमेश्वर ने मुझे अपनी विजडम से एक चीज सिखा दी, A long time ago, the Lord taught me अपने लिए something घर with मांगी wisdom. मत। He said, don't ask for ये a house for प्रार्थना yourself. कर कि दूसरों को घर देगा। Pray that you will give houses to others. जिस दिन आप ये बोलने लगे, The day you जिस start दिन आपकी प्रार्थना ये होने लगे The कि day your prayer परमेश्वर, becomes this. मगर एक बात को समझिए, Understand one thing. अगर एक पाइप के द्वारा पानी आके किसी और को सींचना है तो पहले उस पाइप के अंदर पानी आना पड़ेगा। If a pipe has to draw enough water to give to someone else, they have अगर to get enough परमेश्वर water को in it. दूसरे जिंदगियों को ब्लेस करना है आपके द्वारा तो पहले आपको ब्लेस करना पड़ेगा। If God has to bless other lives through you, He has to first bless you. सो अपनी प्रार्थना बदल दो। Change your prayers. प्रभु मेरी इतने टाइम से शादी नहीं हुई। कब आखिरी बार था आपने किसी और के लिए प्रार्थना करी जिसकी शादी नहीं हुई? Oh Lord, I'm not getting married since such a long time. When was the last time you prayed for somebody else who wasn't getting married? मैं आपको आज आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूँ। इससे teaching. पहले आयूब को परमेश्वर ने दुगना ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। Before God doubled Job, He said, pray for your जब आप friends. दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, डबल पोर्शन ब्लेसिंग आपके जीवन में When आती you है। pray for your friends, when you pray for others, double portion blessing comes on you. आमेन। हमें हार्ट सही रखना है परमेश्वर के सामने। We have to keep our hearts right before the Lord. मैंने कितनी दोस्तियां टूटते हुए देखी हैं जब दो दोस्त साथ में इंटरव्यू करने गए I've seen many friendships break when two friends went for an interview together. और एक का हो गया दूसरे का नहीं हुआ। One got selected, the जिसका other didn't. नहीं हुआ उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर The one who दिया। didn't get selected stopped answering his phone, the other person's phone. क्यों नहीं हम सच में खुश हो सकते जब परमेश्वर हमारे भाई बहनों को आशीष करता Why can't we genuinely rejoice when God blesses our brothers and sisters? है? आप इमेजिन करो, अब्राहम ऑफेंड हो सकता था परमेश्वर से। You can imagine Abraham could have been offended from God. वो तो परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर ने उसको दोस्त बोला आपने, He was God's friend. God called him his friend. और उसको कोई औलाद नहीं दी और परमेश्वर ने अबीमेलेक को औलाद दी। And God didn't give him any child, but He gave it to वो कह सकता था Abimelech. प्रभु तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया? He could have said, Lord, मैं you तो did तेरा it for me. दोस्त हूँ, I'm your मैं तो friend. तेरी सेवा करता हूँ। I'm serving you. तूने किसी और के लिए कर दिया जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी, मगर तूने अभी मेरे उसको blessed नहीं someone पता था। परमेश्वर कह रहा है अबीमेलेक को तो मैंने एक बेटा दिया, तेरे को मैंने राष्ट्रों का पिता बनाया है। He could have said, you bless Abimelech I prayed for, but you didn't give me a son. And God was
God was saying, I have given him one son, तुझे but I'm पता going ही to give you नहीं a कि मैं father of तेरे जीवन nations. के द्वारा क्या करूंगा, You don't even know what I'm going to do through your life. इसीलिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं. That's why I'm preparing you. Amen. So कभी भी जब डिले आप देखते हो किस चीज को होते हुए, When you see a delay, अपने डिले को भर दो थैंकफुलनेस से. fill your delay with thankfulness. जब आप नहीं देखते जो आप देखना चाहते हो, अभी तक नहीं हुआ, When you don't see happening what you desire to see कहाँ ले happen. गया पवित्र आत्मा मैसेज में? ठीक है, मैं आपको कुछ और सिखाना, मैं कन्फेशन सिखाना चाहता हूँ. जब आप डिले देखते हो, When you see a delay in your life, थैंकफुलनेस से भर दो वो मोमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा Fill हूँ it जब with आपके जीवन में हो जाएगा, आप पता क्या सोचोगे, काश मैं उस समय गुड़गुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं. because when it'll happen in your life, you'll think, I wish I did not complain and grumble in that time. आप जानते हैं बाइबल बताती है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, मगर परमेश्वर को महिमा देता रहा. जब उसने नहीं देखा प्रतिज्ञा को, परमेश्वर ने बोल दिया है और वो नहीं हो रहा अभी. इफ गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस और आप नहीं देख रहे होते हुए, Bible says Abraham did not stagger in the promises of God, did not become weak. When God has promised you something but you don't see it happening right now. I'm talking to someone today. मैं आज किसी से बात कर रहा हूँ. परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है God has given you a promise और आप वो होते हुए नहीं देख but you रहे. don't see it happening right now. होल्ड ऑन. थामे रहो उसको. भर दो उस समय को परमेश्वर की महिमा से. Fill that time with the glory of God. भर दो उस समय को परमेश्वर के थैंक्स गिविंग के Fill साथ. that time giving thanks to the Lord. और बाइबल बताती है जब अब्राहम ऐसा करता रहा तो विश्वास में मजबूत हो गया. And the Bible tells us when Abraham kept on doing this, he became strong in faith. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया. He did not doubt on the promises of God. We don't know why, but sometimes there is a delay. हम नहीं जानते पर कई बार देरी होती है. मगर एक चीज निश्चित है But one thing कि is sure. हम कभी भी परमेश्वर की भलाई में संदेह नहीं करेंगे. We will never doubt the goodness of God. So if you are in a season अगर आप एक ऐसे मौसम, ऐसे समय में जहां पे एक डिले है, with there's a delay, एक प्रतिज्ञा आप नहीं पूरी होते हुए देख रहे, अचानक आप promise. वेट कर रहे हैं, a promise you're waiting for, you don't see it happening right now. मैं आपको बता रहा हूं, I'm telling you, भर दो उसको परमेश्वर की थैंक. fill that time up with praises to God, thanksgivings to Him. Amen. एक पास्टर एक बार बता रहे थे कि एक प्रॉफिट के पास दो लोग आए A pastor was telling 2 people came to a prophet. और पहला एक बिजनेसमैन था जो बहुत ब्लेस्ड था, The first was a businessman who was very blessed. बहुत ब्लेस्ड था. He was very blessed. तो उसने कहा कि आप प्लीज परमेश्वर को बोलो और मत करो मुझे ब्लेस, मैं ऑलरेडी इतना ब्लेस हो गया हूँ, मैं पहले ही मैं क्या करूँ मैं इतने पैसे. So he came and he said, please tell the Lord to stop blessing me. I'm already so blessed. I don't know what to do with so बहुत हो much गया money. मेरे लिए. He said, it's enough for me. परमेश्वर को बोलो बस कर दे. Tell God it's enough. I don't want more. और फिर उसी दिन एक और व्यक्ति उनके पास आया And the same day another man came to him और उसने कहा परमेश्वर क्यों नहीं मेरे लिए कुछ कर रहा and he said, why isn't the Lord doing anything for me? है, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है. I don't even have enough money to eat. परमेश्वर को बोल थोड़ा तो मेरे जीवन में कर दे. Tell the Lord, do a little at least in my life. तो वो सोचने लगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है. This man started to think how एक big व्यक्ति a बोल रहा है difference is. परमेश्वर को बोलो बस कर. One man is saying, tell the Lord enough, stop. और दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है. The Lord is, the second is saying, I have nothing. तो वो परमेश्वर के पास गए. So he went to the Lord उन्होंने with कहा, this. प्रभु, He said, Lord, ये मेरे पास आज दो लोग आए. these 2 people came to me today. पहले ने बोला The first said, कि परमेश्वर बस कर, Lord, कितना stop वो it. डालेगा मेरे जीवन में, How much will you pour into my life? बस कर. Enough, stop तो it. प्रभु ने उनसे कहा The Lord told him, जाके उस व्यक्ति को बोल, tell that man, अगर वो चाहता है कि मैं बस करूं if he wants me तो to उसको stop, बोलो कि धन्यवादिता करना बंद कर दे. tell him to stop thanking me. क्योंकि जब तक वो धन्यवादिता करता रहेगा Because till the time उसके he keeps जीवन thanking में me, आशीषें उमड़ती रहेंगी. blessings will keep pouring in his life. और उन्होंने कहा जाके दूसरे को बोल And he said, tell the other person कि कुड़कुड़ाना बंद कर दे. to stop complaining and grumbling. क्योंकि अगर वो कुड़कुड़ाना बंद कर देगा Because if he'll stop और grumbling धन्यवाद देना शुरू कर and देगा start thanking, तो उसके जीवन में भी आशीषें उमड़ने then लगेंगी. he will have blessings in his life. आपको पता है कितने मसीहों ने You know, many believers, चोक कर दिया. परमेश्वर की ब्लेसिंग का फ्लो तो ऑन है, मगर क्योंकि वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं, the flow of God's blessing is on, but because these people keep on grumbling and complaining, वो रोक देते हैं. they stop the blessings of God. परमेश्वर के उस स्रोत को चोक कर देते हैं. The source of God, they choke it.
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मसीह में हैं और आप आशीषित नहीं हैं, पॉसिबल ही नहीं है। Because it is not possible that you are in the Lord but you are not blessed. सो अगर नहीं दिख रही आशीषें, चेक करो अपने पाइपलाइन को कि कहाँ चोक हो रखी है। If you don't see blessings in your life, check the pipeline where there's a choke. परमेश्वर को धन्यवाद करने लग जाओ। Start thanking God. मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक सीक्रेट बता रहा हूँ। I'm teaching you a secret to multiplication. मल्टीप्लिकेशन का सीक्रेट है थैंकफुलनेस। The secret to multiplication is thankfulness. मल्टीप्लिकेशन का सीक्रेट मैं आपको सच में परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ। जब 2500 भी मेरी तनख्वाह थी, मैं प्रभु का था, प्रभु मैं तो 4 कॉर्ड जानता हूँ, स्कूल वालों को पता ही नहीं है, फिर भी आपने मुझे एक नौकरी दी। I'm telling you before the Lord, I used to thank the Lord saying, Lord, I thank you for this salary. I just know 4 chords, but the school people are still giving me a salary. और जैसे जैसे मैं धन्यवादिता करता रहा, थैंकफुलनेस में बढ़ता रहा, मेरी सैलरी बढ़ती रही। And as I kept growing in thankfulness, my salary kept growing. उसके बाद परमेश्वर ने दिल्ली बुलाया। After that, the Lord called me to Delhi. दिल्ली में गुड़गांव में मैं मोमो खा रहा था। गुड़गांव में या मालवीय नगर, कहीं मुझे याद नहीं, दोनों में से एक जगह मैं मोमो खा रहा I was था। eating एक व्यक्ति momos in आया Delhi. और बोला, आप मेरी कंपनी में जॉब करोगे? A man walked up to me and said, will you work in my company? मैं देहरादून में 8000 रुपए कमा रहा था। उन्होंने कहा मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। I was earning 8,000 in Dehradun. This man said, I'll give you 20,000. जब आशीष आपको लोकेट कर देगी तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स आपको ढूंढेंगे। When the blessings of God will locate you, you will not have to hunt for them. They will hunt you down. I declare, may the favor of God locate you today in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की तरफदारी आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के May the नाम में। blessing of God locate you today in Jesus' name. परमेश्वर की आशीष आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के नाम में। सच में जेन्युइन हार्ट से हम लोगों को वो लोग बनना है जो परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। Truly, with a genuine heart, we have to become those people who can thank the Father. आप जानते हैं अबीमेलेक को परमेश्वर ने संतान दे दी। God gave a child to Abimelech. 1 साल हो गया इब्राहिम की संतान। It's been a year. 2 Abraham साल, has no child. 2 5 years, साल, 5 years, 10 साल, 10 years, 15 साल, 15 मगर वो years. डगमगाया नहीं। But it did not waver. प्रभु तू सच्चा He है, would say, God, you're true. तेरा वादा सच्चा है, Your promise is true. तू कभी नहीं बदलता है। You do not change. जो तूने बोला है वो तू करेगा प्रभु। What you have said, you will do. मैं डगमगाऊंगा नहीं। I will not waver. आज घर जाइएगा आप, When you go home today, एक पेपर लीजिएगा take a और paper उसमें ना एक बार अपनी आशीषें लिखना शुरू करें। and just start to write down your blessings today. और सच में अगर प्रभु आपकी आंखें खोले, आपकी नोटबुक भर जाएगी मगर जगह नहीं होगी And उसमें। truly, if the Lord opens your eyes, your notebook will be filled, but you will have no space to write. और फिर उस हृदय से And then with that heart, उसकी आराधना करना, उसकी worship Him, praise Him. तब आपको पता लगेगा आप कितने ब्लेस्ड हो। You will then realize how blessed you are. वो हमेशा आपके जीवन में विश्वास योग्य रहा है, रहता है और हमेशा रहेगा। He was always faithful in your life. He is faithful in your life now, and He will always be faithful in your life.